Hello, good morning, everyone. So, how are you guys? Hope you are doing fine. So, in this last lecture, we have discussed Unit 1 and we were discussing enterprise systems. Okay, so the notes will be uploaded in the Drive link that I will be sharing in the description. So, do check out that. And today we are going to start Unit 2. We'll cover Unit 2 completely. Okay, so let's start. So, there is a quick, I would say, to be on the same page. Unit 1, we have learned about what enterprise systems are, ERP systems, CRM, SCM, etc. In Unit 2, what we are going to learn, we are learning what special characteristics make ERP system different from normal software. Okay? How enterprise systems are built, what are the architecture of it, modern architecture styles used in enterprise systems. So these three things, the question of these three and the answers of these three questions you will be getting from this unit, and you're going to comment that did you get the answers of these questions or not. Okay. So first, what is the relationship between Unit 1 and Unit 2? Unit 1 mein we have studied about enterprise systems, these things. Unit 2 mein we will study how are they designed, their characteristics and architecture. Okay, let's get started. So key characteristics of enterprise systems. Enterprise systems are different from ordinary application because they handle huge data, thousands of users, multiple departments, complex workflows. To support this requirement, enterprise systems possesses certain characteristics. ठीक है, पहला characteristics क्या है उसका? The characteristics are distributive. It is distributive. ठीक है. So the definition of distributive is system resources and processes are distributed across multiple computers and servers and locations. मतलब instead of one computer doing all the work, multiple computers sharing the workload. ठीक है. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, Amazon has shared located worldwide, मतलब servers located worldwide. When a customer in India access the Amazon, Indian server process the request, US server stores some data, and payment server works separately. This is called microservice architecture. If you know the technical background of it, this is called microservice architecture. जिसमें हमारे पास in the system we have multiple microservices. Each microservices has their own different independent role. तो अगर let's suppose if this is a microservice called payment, तो अगर ये microservice fail करता है, this payment microservice fail करता है, then also these other microservices will work. This provides a modularity to our system, and this distributive system, this ERP systems follow this distributive thing. ठीक है. तो जैसे इसमें जैसे एंटरप्राइज सिस्टम है, सर्वर ए इंडिया में, सर्वर बी यूएस में, तो इंडिया में भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, यूएस में भी स्टोर होता है. और फिर सर्वर सी, मान लो पेमेंट है, कोई पेमेंट का सर्वर है वो यूरोप में, इस टाइप पे मल्टीपल जगह पे चीजें होती हैं. एडवांटेजेस क्या है? फास्टर प्रोसेसिंग, बेटर परफॉर्मेंस, फॉल्ट टॉलरेंस, स्केलेबिलिटी. तो इसका एग्जांपल, इसका डेफिनेशन देख सकते हो. डिस्ट्रीब्यूटिव इज एबिलिटी टू एंटरप्राइज सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसेस एंड डेटा अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन एंड कंप्यूटर. ठीक है. नेक्स्ट, मैनेज रिडंडेंसी. तो मैनेज रिडंडेंसी मींस मेंटेनिंग अ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ डेटा और रिसोर्सेज इन अ कंट्रोल्ड मैनर. ऐसा नहीं, देखो हम लोग ईआरपी सिस्टम में भी डेटा को डुप्लीकेट करके रखते हैं एज अ बैकअप रखते हैं, ताकि मान लो इन फ्यूचर कुछ दिक्कत हो गई तो हम लोग बैकअप से रेफर कर सके. लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे बिना किए ही बैकअप बन रहा है या डुप्लीकेशन हो रही है. तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. दिस इज, सो वी नीड टू मैनेज आवर रिडंडेंसी. सो व्हाई नीडेड? ऑब्वियसली अगर वन सर्वर क्रैश हुआ तो विदाउट बैकअप डेटा लॉस हो जाएगा. सो वी नीड रिडंडेंसी फॉर बैकअप सर्वर एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन. तो बैंक डेटाबेसेस मेंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द कस्टमर अकाउंट्स. ठीक है. तो प्राइमरी डेटाबेस का हम लोग रेप्लिकेशन कर देते हैं ताकि, और उसको एक बैकअप डेटाबेस रखते हैं ताकि अगर प्राइमरी डेटाबेस डाउन हुआ तो हम उसको यूज कर सकें. डेटा प्रोटेक्शन, डिजास्टर रिकवरी, हायर अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. तो अब देखो एग्जाम पॉइंट के लिए रिडंडेंसी इज यूजफुल ओनली व्हेन प्रॉपरली मैनेज्ड, अदरवाइज डुप्लीकेट डेटा कैन बी इनकंसिस्टेंट. मैंने ये चीज पहले रेफर कर दी है. एक्सेप्शन प्रोसेसिंग. एक्सेप्शन प्रोसेसिंग इज हैंडलिंग अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ड्यूरिंग बिजनेस ऑपरेशंस. जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखो, ऑनलाइन पेमेंट फेल हो गया, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैंसल ट्रांजैक्शन, सेंड नोटिफिकेशन, रिफंड मनी. ये सब 3 चीजें ऑटोमेटिकली होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन प्रोसेसिंग. ये आपके ईआरपी सिस्टम में होनी ही चाहिए.
देन इन्वेंट्री बिकम जीरो। अगर इन्वेंट्री बिकम जीरो तो सिस्टम जनरेट करना चाहिए अलर्ट, नहीं तो मान लो इन्वेंट्री हमारी जीरो हो गई और 100,000 लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो अब ऑर्डर दिखा रहा था 7 डेज, बट अगर इन्वेंट्री जीरो है तो उसको इन्वेंट्री को वापस रिफिल करना पड़ेगा, तो ये 7 डेज का 15 डेज हो जाएगा, तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। तो इन्वेंट्री खत्म होने से पहले ही नोटिफिकेशन चली जाए जो भी उसको इन्वेंट्री मैनेजर को कि यार इन्वेंट्री जीरो होने वाला है, तो जस्ट डू इट समथिंग। नॉर्मल प्रोसेस चलते रहते हैं, एक्सेप्शन आते हैं, नो करो एक्सेप्शन तो कंटिन्यू, यस तो एरर हैंडल करो। बेनिफिट क्या होता है? एक सिंपल रिलायबिलिटी, एरर मैनेजमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी, कोलैबोरेशन भी होता है ईआरपी सिस्टम्स में। तो कोलैबोरेशन मींस मल्टीपल यूजर, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर थ्रू इंटरप्राइज सिस्टम्स। जैसे प्रोडक्ट लॉन्च प्रोसेस, तो डिजाइन टीम क्रिएट्स प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग टीम बिल्ड्स इट, मार्केटिंग टीम प्रमोट्स करती है, सेल्स टीम सेल करती है। ऑल द इंफॉर्मेशन शेयर थ्रू द एंटरप्राइज सिस्टम। कोई भी आके, कोई भी टीम आके ये सब चीजें देख सकता है। डिजाइन टीम, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स इंटरप्राइज सिस्टम में स्टोर होती है। एडवांटेजेस: बेटर कम्युनिकेशन, फास्टर डिसीजन मेकिंग, इनहांस प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी जरूरी है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। नीडेड क्यों है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूज डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स, एंटरप्राइज सिस्टम मस्ट स्टैंडर्डाइज देम। ठीक है, जैसे एक सिस्टम में डेट का फॉर्मेट ये है, दूसरे सिस्टम में डेट का फॉर्मेट ये है, तो इसको कन्वर्ट करने का काम भी ईआरपी सिस्टम खुद करता है। रॉ डेटा से ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से स्टैंडर्डाइज डेटा, तो उसको कन्वर्ट भी ईआरपी सिस्टम कर देता है। डेटा इंटीग्रेशन, रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स, माइग्रेशन, इन सब में काम आता है। मेमोरी ट्रिक भी याद कर लो। डिस्ट्रीब्यूटिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव बोल दो, डिस्ट्रीब्यूटिव। देन मैनेज रिडंडेंसी, एक्सेप्शन प्रोसेसिंग, कोलैबोरेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट द बी पार्ट इज, वेट, हाँ, इन द सिस्टम में हमने ये चीज पढ़ ली पूरी। नेक्स्ट हमें आर्किटेक्चर पढ़ना है। आर्किटेक्चर पढ़ दो। आर्किटेक्चर क्या होता है? सो आर्किटेक्चर इज अ ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो इसके कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन, डेटा फ्लो, डिप्लॉयमेंट, ये सब चीज आर्किटेक्चर में आता है। ये आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करता है इसको। पहला है बैच प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। तो प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट शेड्यूल्ड इंटरवल्स, जैसे सैलरी प्रोसेसिंग, तो एम्प्लॉइज आर पेड एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, जो बैच प्रोसेसिंग मतलब एक साथ बहुत सारे बल्क में डेटा प्रोसेस करना। तो डेटा कलेक्शन, स्टोर डेटा, शेड्यूल करना प्रोसेस कब होना चाहिए सबको, और आउटपुट रिपोर्ट जनरेट करना, ये सब चीजें बैच प्रोसेसिंग करती है, एम्प्लॉय सैलरी वाला। तो इफिशिएंट, लार्ज फॉर डेटा, कॉस्ट लो कॉस्ट लगता है, एक साथ करने में कम कॉस्ट लगता है। नो रियल टाइम प्रोसेसिंग, हमेशा उसको ऑन करके नहीं छोड़ना सर्वर को। फिर आता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जिसमें एंटायर एप्लीकेशन एक सिंगल यूनिट में रन करे। जो मैंने बताया था माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ये उसका एकदम उल्टा है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पहले यूज होता था, हम लोग मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विस में स्विच किए हैं विथ टाइम। ठीक है, तो ये सिंगल सिम इंटायर एप्लीकेशन सिंगल यूनिट में रन करता है। तो जैसे स्ट्रक्चर इसका होता है यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस, और एक सब कुछ एक सिंगल एप्लीकेशन में। जैसे ट्रेडिशनल बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते थे, ये सब चीज एक सिंगल सॉफ्टवेयर में काम होता था, सिंगल ऐप में होता था। इसका एडवांटेजेस थे कि सिंपल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, की एक ही ऐप डिप्लॉय कर दो, इजी डेवलपमेंट, डेवलप करना भी आसान होता था। हाँ, डिसएडवांटेजेस तो सब चीज एक में है, तो स्केलिंग डिफरेंट होती है, मेंटेनेंस मुश्किल होता है। नेक्स्ट होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें एक क्लाइंट रहता है, दूसरा सर्वर रहता है, और इन दोनों के बीच में लेन देन होता है। ठीक है, बस क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विस एंड सर्वर प्रोवाइड दैट सर्विस। बस क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को और सर्वर ने रिस्पॉन्स कर दिया, खत्म। एटीएम सिस्टम, एटीएम क्लाइंट है और बैंक जो डेटाबेस है वो सर्वर है। एटीएम क्लाइंट ने मांगा और सर्वर ने पे कर दिखा दिया उसको। एडवांटेजेस: सेंट्रलाइज सिस्टम, सिक्योर होता है। ई कॉमर्स आर्किटेक्चर भी होता है। आर्किटेक्चर सपोर्टिंग बिजनेस एंड ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। जैसे कस्टमर है, कस्टमर वेबसाइट पे गया, बिजनेस लॉजिक, लाइक वेबसाइट या ऐप पे बिजनेस लॉजिक लगा के इसको क्या देखना है, फिर डेटाबेस में अपडेट हुआ, फिर पेमेंट गेटवे हुआ। अमेजोन, फ्लिपकार्ट उसके एग्जांपल से। कंपोनेंट देख लो, प्रोडक्ट कैटलॉग, सर्विस चार्ट, कार्ट, देन पेमेंट सिस्टम और ऑर्डर मैनेजमेंट। देन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, एसओए, it divides application into independent services. Each services perform a specific business function. अब जैसे बैंकिंग सर्विस है, बैंकिंग सिस्टम है, तो इसका सेपरेट सर्विस होगा। कस्टमर सर्विस, अकाउंट सर्विस, लोन सर्विस, पेमेंट सर्विस, ये सब सेपरेट सर्विसेज है। तो इसमें सर्विसेज के हिसाब से इसने सिस्टम्स को डिवाइड किया है, लाइक कस्टमर सर्विस, लोन सर्विस, पेमेंट सर्विस, अकाउंट सर्विस। तो रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रेशन, जो मैं बात कर रहा था माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। इट डिवाइड्स एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट डिप्लॉयबल सर्विसेज, जो अपने आप में डिप्लॉय हो सके। एसओए, लार्ज डिफरेंस फ्रॉम एसओए जो होता था लार्ज बिजनेस सर्विसेज थी, माइक्रो सर्विस में स्मॉल हाईली इंडिपेंडेंट सर्विस होती है। ठीक है,
फूड डिलीवरी एप्लीकेशन में यूजर सर्विस, ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, डिलीवरी सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस सब अलग अलग है, सब इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। अब जैसे इसका डायग्राम हो गया, एपीआई गेटवे होती है, एपीआई गेटवे में ये सारे देखो अलग अलग सर्विसेज एक साथ, एपीआई गेटवे इसको ट्रैक करता है, इसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। सो हाई स्केलेबिलिटी, इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, इजी मेंटेनेंस। अब यही चीज है कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसको मैनेज करना है बस। फिर आता है क्लाउड आर्किटेक्चर। तो कितनी सारी चीजें हैं यार इसमें, देखो कितनी सारी। अभी हम कहाँ पहुंचे, क्लाउड, ऑलमोस्ट हम लास्ट पहुंच गए। इसके बाद एक और चीज इसकी पड़ेगी, cloud architecture. Application and data are hosted on cloud services instead of local machines. Obviously Google Cloud, Azure, AWS। तो यूजर इंटरनेट के पास जाता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म एक्सेस करता है और डेटा एप्लीकेशन को यूज करता है। एडवांटेजेस, यही सब एडवांटेजेस है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है। अब आर्किटेक्चर इवैल्यूएशन कैसा हुआ, पहले बैच प्रोसेसिंग, फिर मोनोलिथिक, क्लाइंट सर्वर आया, ई कॉमर्स आया, फिर एसओए आया, फिर माइक्रो सर्विसेज आया, और अब हम क्लाउड को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट सी में आते हैं, या इंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। ठीक है, दीज आर्किटेक्चर डिफाइंस हाउ आर्किटेक्चर इंटरप्राइज एप्लीकेशन आर इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड। पहला होता है लेयर्ड आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन आर डिवाइडेड इनटू लेयर्स, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में यूजर इंटरफेस रहता है, इसमें बिजनेस रूल्स रहते हैं। डेटा लेयर में डेटाबेस एक्सेस रहता है। इसका डायग्राम देखो, प्रेजेंटेशन लेयर ऐसा ऐसा, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम इस टाइप में काम करता है। एडवांटेजेस देख लो इसके, क्लियर सेपरेशन वगैरह। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, जिसमें सिस्टम रिएक्ट्स टू इवेंट्स। जैसे इस एग्जांपल देखो, पहले फूड डिलीवरी ऐप में इवेंट पे होता है। लाइक अगर मान लो कस्टमर एक ने ऑर्डर प्लेस किया, तो इवेंट जनरेट हुआ और फिर ऑर्डर प्लेस हो गया। तो ट्रिगर्स क्या होती है, इन्वेंट्री सही, इन्वेंट्री अपडेट करना, पेमेंट प्रोसेस करना, नोटिफिकेशन देना सबको, ये सब चीजें। इसका डायग्राम ये हो गया। फिर अगर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, और जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ऊपर में, कि सर्विस एसओए, देखो याद करो, माइक्रो सर्विस से पहले ही डिस्कस किया था, तो ये सेम चीज है। फिर चौथा होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्मॉल सर्विसेज, इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, सेपरेट डेटाबेस होते हैं। इसका डायग्राम देखो, मल्टीपल एबीसीडी, अलग अलग माइक्रो सर्विस है, जो कि कनेक्टेड है एक एपीआई गेटवे के थ्रू, जो कंट्रोल करता है उसको। प्लग इन आर्किटेक्चर, प्लग इन पे मतलब प्लग इन यूज, बेसिकली कोर सिस्टम फंक्शनलिटी दैट कैन बी एक्सटेंडेड इनटू प्लगइन्स। जैसे वेब ब्राउजर हो गया, वेब ब्राउजर में प्लगइन्स, क्रोम सपोर्ट, एड ब्लॉकर, पीडीएफ व्यूअर, सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। तो ये सारे मल्टीपल प्लगइन्स होता है, ये सारे भी एक सिस्टम के एग्जांपल्स हो गए। अब देखो जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, तो उसके बारे में हम लोग ना इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, लेयर्ड, ये सब चीजों का। तो बिजनेस, बेस्ट फॉर बिजनेस ऐप, लेयर्ड, इजी मेंटेनेंस, रियल टाइम सिस्टम्स को पढ़ लेना, देख लो कैसा क्या है। नेक्स्ट, अब हम यूनिट 2 कंप्लीट कर रहे हैं, उसको समरी देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने, ये सारे इसके मतलब शॉर्ट फॉर्म में, इसका मेमोनिक्स है, निमोनिक्स। देन आर्किटेक्चर पढ़ा, बैच प्रोसेसिंग, क्या क्या चीजें आर्किटेक्चर होती है, ठीक है। फिर हमने ऐप आर्किटेक्चर पढ़ा, लेयर्ड, इवेंट ड्रिवन, एसओए, प्लगइन्स, ये सारी चीज। इसके साथ हमने, हाँ, एक और सुपर इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा इसको एग्जाम के लिए या इसको याद रखने के लिए अच्छा आपके लिए रहेगा, जो कंपेयर मोनोलिथिक, एसओए एंड माइक्रो सर्विस। तो ये देख लेना एक बार कि स्ट्रक्चर, डिप्लॉयमेंट, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेंस, इसमें क्या क्या इन लोगों का रोल रहता है। यू कैन इजिली, तुम्हें एग्जाम में लिखने में हेल्प होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। अब देखो अगले, दिस कंपैरिजन अलोन 8 to 10 मार्क्स आरजीपी एग्जाम्स में आए हैं पिछले पेपर को एनालाइज करने पे, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार, ये टेबल को। अब इस टेबल को रेफर करके आप खुद से आंसर्स बना सकते हो, लिख सकते हो। ओके, सो वी आर गुड टू गो, ये कंप्लीटेड। यूनिट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। सो अगेन सेम थिंग, अगर वीडियो पसंद आई लाइक करो, और वीडियो चाहिए सब्सक्राइब करो। कुछ पसंद नहीं आया, कुछ पसंद अच्छा लगा, वीडियो की स्पीड सही है नहीं है, सब चीजें बतानी है, जस्ट कमेंट इट, आई विल सी द कमेंट, आई विल रिप्लाई, क्या सही है क्या नहीं है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 2। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट यूनिट 3। okay, thank you for your time, thank you for watching. 14 minutes, 1 unit complete, good achievement. Okay, bye bye, have a good day guys.